I've decided to take a 15-minute session on five most important topics of legal reasoning for CLAT 2020. What I have been seeing is the sessions being taken by uh, other fellow teachers, in which basically what they do is try to cover up a single topic for 2 hours or more than that, which ideally takes a lot of time away from preparation. Therefore, to bridge that particular gap, we will be going through five important topics. And as the nature of the exam, you understand, is of the passage based. So I will be also showing you on screen that what are those passages which we would have read earlier, or we should ideally go back and read them. So without much ado, let's start with this session. And we'll be discussing these five topics in next 50 minutes. So let's start. I hope the screen is visible to you. Yes. So once I say five most important topics in 50 minutes, it was a very difficult decision to include those five passages because there were a lot of topics. Some topics are related to entry of a woman in army. Then there was related to this strict liability and absolute liability as well. And further ongoing topic like art, CGI within CGI in vis RTI, or some other topics which I've already mentioned in my session on how to prepare for legal aptitude. That being said, what will be these five most important topic? Let's go through. So, topic one. When we come down to topic one, the first and foremost and the the most important topic for this year's CLAT, and even NLAT has tested you on that, is with respect to this lockdown, the laws. So then there was this particular passage, and we know that's a passage-based exam. The passage is from 3rd of April 2020, but it's very relevant. It's in the time frame which is given for CLAT. The quarantine and the law. Very important. Court have the power to review movement curves during disease outbreak, but have upheld them in public interest. I hope you would have read this particular passage. Now we have seen that lockdown punishment. A lot of newspapers posted this particular type of pictures where in the earlier stage, lockdown one, lockdown punishment were given to the people who were roaming around. We saw a lot of videos. Then this particular data is we can't say that this particular data will be useful to us, but yes, it shows the critical care of beds occupied. Then there were other passages which were mentioned in the various newspapers, such as this on your screen. A 21-day lockdown was imposed to curb the impact of novel coronavirus, etc., etc. In Uttar Pradesh, what happened? The lockdown was imposed, and then the people were arrested for violation of the lockdown norms. That was mentioned in this particular paragraph, to be on precise. Then the lockdown violation 568 arrested, rupees 13 lakh collected as a fine in UP. And in this particular passage, what you can see on screen in the highlight section is the Epidemic Disease Act. This is important. When there is something called a world mentioned act, then it becomes all of a sudden important for law aspirants and the people who are associated with law fraternity. Then the major issue which we saw that few people were using these four terms simultaneously. Some people were saying lockdown, curfew, quarantine, isolation. A lot of people thought that that it is the same word. Some people said हम quarantine है. Some said कि हम lockdown में हैं. Some said हम isolation में हैं. It's still going on. A lot of people have been using these terms in such a manner that we don't know the difference. But it's a time when you should learn the difference. So, understand first and foremost, lockdown is not a legal term. Okay? The term is being used by the government officials and other to describe a situation where free movement of goods is restricted. Understand, lockdown is related to the movement of goods, okay, with exception of essential items. Okay? And those essential items are declared by the government of India. किस कानून के अंतर्गत वो लोग करते हैं? एपिडेमिक डिसीज एक्ट विल टेक यू थ्रू दैट पर्टिकुलर एक्ट ऑल्सो. ठीक है, सेक्शन 2, 3 and 4 ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट के अंदर वो लोग डिक्लेयर करते हैं. कर्फ्यू क्या होता है? कर्फ्यू इज द एक्सरसाइज ऑफ पावर अवेलेबल टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ठीक है, सेक्शन 144 का नाम तो सुना ही होगा अब तक, तो पक्का पक्का. ऑफ द मोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉमन पार्लेंस में इसे ही कर्फ्यू कहा जाता है. तो वी कैन जस्ट राइट डाउन कर्फ्यू एंड इक्वल टू और सिमिलर टू और समवट रिलेटेड टू सेक्शन 140, वो जैसे याद रहे अपन को. सैम्पल पेपर में भी पूछा गया था, रिमेंबर दैट. Common parlance, quarantine and isolation are used interchangeably, but they convey two different meanings and are two different mechanisms. Understand?
quarantine is imposed to separate and restrict the movement of a person who may have, now this is very important, who may have been exposed to infectious disease but not yet known to be ill. ठीक है, अब हो सकता है कि आपके घर से कोई गया हो दिल्ली में और वहां पे जिस फ्लैट हो गया हो या जिन लोगों के पास गया हो उनमें से किसी को कोविड हो गया होगा, ठीक है, तो नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन, इस पर्टिकुलर पर्सन को सेपरेट किया जाएगा और इसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और ये जो पर्सन, इसके जो मूवमेंट होंगे, इसके जो रिस्ट्रिक्शन होगा, उसे उस इंसान को क्वारंटीन, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्वारंटीन बोलेंगे. Isolation is completely different. It's separation from others of a person known or reasonably believed to be infected. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब तब कंप्लीट आइसोलेशन की एक तरीका आ जाता है फ्रॉम दूसरे इंसान से जिसको हमको मतलब रीजनेबल बिलीव है कि ये इन्फेक्टेड है फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज. नाउ हियर इन द टर्म इज कम्युनिकेबल डिसीज एंड देयर इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव टू कोविड. ठीक है, सो दीज आर द 4 टर्म्स: लॉकडाउन, कर्फ्यू, क्वारंटीन, आइसोलेशन. ठीक है, इसमें क्वारंटीन में मे हैव एक्सपोज टू इन्फेक्शियस डिसीज, सेकेंड में रीजनेबली बिलीव्ड. ठीक है, आइसोलेशन के केस में. चलो, दैट बीइंग सेड, नाउ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लॉ एंड एग्जामिनेशन के दीज सेक्शंस व्हिच आर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. सेक्शन 188 सीआरपीसी, सेक्शन 269 आईपीसी, सेक्शन 270 आईपीसी, सेक्शन 271 आईपीसी, सेक्शन 144. सेक्शन 144 की अपन बात कर चुके हैं एंड आई हैव टोल्ड यू दिस इज व्हाट इज इन द कॉमन पार्लेंस नोन एज कर्फ्यू. अब इन सबके डिफरेंट पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है. ठीक है, अब बात करें इनके वायलेशन अगर कोई करेगा, द पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ दिस कोरोना वायरस लॉकडाउन जो लगाया गया था, इसमें आता है पनिशमेंट फाइन. ठीक है, पीपल हु वायलेट लॉकडाउन ऑर्डर्स कैन बी पनिश्ड अंडर फॉलोइंग सेक्शन. सबसे पहले आईपीसी को देख लेते हैं, इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 269, नेग्लिजेंटली लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ. ठीक है, यहाँ पे आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से आप दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हो डिजीज से, तब आपके ऊपर सेक्शन 269 लगेगा. पनिशमेंट लिखा हुआ है, हमारे पैसेज में आएगा तो याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सबसे अच्छी बात इस ईयर के पेपर की ये है. 270, मलाइनी एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ. ठीक है, अगेन मोर ऑफ अ, इसमें जानबूझ के से भी एक ऊपर का वर्टिकल आ जाता है. ठीक है, कि चाह के किसी को फैलाना. ठीक है, सेक्शन 188 क्या बात करता है? डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, वायलेशन ऑफ कर्फ्यू की बेसिकली बात करता है और इसका भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है. ठीक है, तो वी विल नॉट लर्न दोस पनिशमेंट बट वी विल अंडरस्टैंड दीस सेक्शंस कि ये सेक्शन कहीं पे भी लिखा हो इसका मतलब लॉकडाउन की बात की जा रही है. एंड वंस वी सी द टोन ऑफ द पैसेज गोइंग इनटू दिस फ्रेमवर्क ऑफ लॉकडाउन, कोरोना वायरस से रिलेटेड लॉकडाउन जिसके वायलेशंस के ऊपर बात होगी, तो बस नाउ वी नो द टोन ऑफ द पैसेज एंड इट्स वेरी इजी, वी कैन स्विच टू लाइकली द क्वेश्चंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. चलो, दैट बीइंग सेड, हाँ अब देखो यहाँ पे भी हेडिंग में तुम देख रहे हो सेक्शन का मेंशनड है. ठीक है, लॉ का मेंशनड है. कनिका कपूर चार्ज विद आईपीसी सेक्शन 269 एंड 270. अपन ने अभी पढ़ा है 269 एंड 270, मतलब देखा है. नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू मलाइन एक्ट लाइकली टू स्प्रेड. ठीक है, तो इन दोनों प्रोविजंस के अंदर ये न्यूज आई थी कि इनको इंटरोगेट करेगी कौन सी पुलिस? लखनऊ पुलिस. ठीक है, अच्छा, over 27,400 cases filed for violating lockdown in Maharashtra. Now again, this same thing. लॉकडाउन की जो प्रोविजंस हैं उनका वायलेशन करना, एफआईआर की गई लोगों के खिलाफ, लोगों से फाइन लिए गए. अगेन देखो जो पैराग्राफ है इसकी फर्स्ट लाइन यहाँ पे स्टार्ट होती है और बोलती है कि अंडर विच लॉ? अंडर सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी. अच्छा, अब आगे चलते हैं. द इम्प्लीकेशन ऑफ नॉट फॉलोइंग अ नेशनल लॉकडाउन कुड बी, जो हो सकते थे. ठीक है, section 188 of CRPC, where disobedience to direction of public servant is punishable, both fine and imprisonment. Section 269, whoever unlawfully or negligently does any act, maligny does any act. ठीक है, 270 की बात करते हैं. If someone escapes quarantine, the authorities may invoke provision of section 271 IPC. ठीक है, अब ये ध्यान से समझने वाली बात है. अगर कोई इंसान है जो क्वारंटीन से एस्केप हो गया, जो हम लोग न्यूज देखते हैं कि खिड़कियों से चले गए कूद के, समोसा खाने चले गए और वहां से भाग गए. ठीक है, तो वहां पे सेक्शन 271 लग सकता है. ठीक है, इट सेज दैट whoever disobeys any rule by the government to regulate the conduct of places where an infectious disease prevails shall be punishable with 6 months imprisonment. So again 271 less talked of, but one must understand because क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है कि कोई एक इंसान था, X was under the quarantine in Madhya Pradesh. We have seen the news like this. That particular person escapes. Which of the following provision of law can be used by the authorities against this particular person? फिर अपने पास 4 ऑप्शन, आंसर है 271. Done. If there is imposition of section 144 condition, then it is a curfew. ठीक है, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं तो दोबारा नहीं देखेंगे. Section 144 is curfew, याद रखना.
चलो, अब एपिडेमिक डिसीज ये सबसे मतलब इस साल का सबसे एक इजी फॉर्म का एक एक्ट है, सबसे छोटा एक एक्ट है, लेकिन इसकी हमेशा न्यूज़ बनी रहती है। पावर टू टेक स्पेशल मेजर एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन एज टू डेंजरस एपिडेमिक डिसीज। एपिडेमिक डिसीज को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट यूज किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिसीज, ठीक है। उस वो जो एक्ट यूज होता है उसे बोलते हैं एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 का एक्ट है, ठीक है। अब देखो सेक्शन 2A, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिस जिस तरीके की पावर यूज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी मेंशन्ड है सेक्शन 2A में। सेक्शन 3 में मेंशन है पेनल्टी, कोई भी इंसान जो इन रेगुलेशंस का पालन नहीं करेगा, साफ साफ लिखा हुआ है शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पेनल कोड। दिस इज डायरेक्टली लिंक टू आईपीसी, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एपिडेमिक डिसीज एक्ट का रिलेशन विद आईपीसी। प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर द एक्ट। अब मान लो किसी पुलिस आप कोई वायलेशन कर रहा है लॉकडाउन के नियम का, लेकिन पुलिस वाले भैया उससे बोल रहे हैं कि अंदर जाओ, लेकिन वो इंसान अंदर नहीं जा रहा। अब पुलिस वाले भैया क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, मतलब जैसे भी डिफरेंट मैनर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, उठा के उसको उसके घर पे रख के जाते हैं ना। दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट से दैट माय राइट टू बॉडी हैज बीन वायलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर पुलिसमैन, ही विल से दैट आई वाज डूइंग इट इन गुड फेथ, सो ही हैज सेक्शन 4 ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट टू सेव हिम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस, चलो। एपिडेमिक डिसीज एक्ट, इसके जो प्रोविजंस हैं वी विल नॉट गो इनटू डिटेल, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये बहुत यूज पे रहा है 2005, अपन को याद बस रखना है 2005, जैसे आई एम स्पेसिफिकली टेलिंग यू फॉर एआईलेट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस साल का है? 2005 का है। डील करने के लिए ये प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क मेजर करने के लिए इन सारी सिचुएशन को, डिजास्टर्स को, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है जो हम लोग सेकंड पैराग्राफ में देख रहे हैं, द पर्पस ऑफ दिस लॉ वाज टू कैटर टू सिचुएशन नेचुरल डिजास्टर के रिलेटेड मैनेज करने के लिए ये एक्ट था, ठीक है। हाउएवर 14 मार्च को होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया कोरोना वायरस आउटब्रेक को एज अ नोटिफाइड डिजास्टर। Understand which kind of a disaster is corona outbreak by the home ministry, it's a notified disaster। यहां पे अब प्ले में आ गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, बिकॉज होम मिनिस्ट्री ने इसको मान लिया था, इसको डिक्लेयर कर दिया था नोटिफाइड डिजास्टर, ठीक है। द एक्ट वाज लेजिस्लेटेड अंडर द हेड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, वी विल नॉट गो इनटू दिस डिटेल, ठीक है। प्राइम, ये जो अपने लिए समझने वाली बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और इसका जो सेक्शन है, किस सेक्शन के अंदर होते हैं, वो अपन को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि किस सेक्शन के अंदर होते हैं। वैसे सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए है, ठीक है। इनके पावर्स भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं, क्या क्या कर सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, जितना जो हम लोग इतने सारी कहानी सुन के चल रहे थे, और हम लोग के पेरेंट्स भी हम लोगों से पूछ रहे थे, बिकॉज वी आर लॉ एस्पिरेंट, मतलब जो तुम लोग हो, तो कि ये कैसे कर दिया सरकार ने, क्या ऐसा कर सकती है, देन नाउ यू कैन टेल योर पेरेंट्स लाइक इट्स सेक्शन 10 क्लॉज 2 सब क्लॉज आई ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एंड यू आंसर्ड इट करेक्टली। चलो, अब आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा, ठीक है। Is the lockdown constitutionally valid? I think we don't want to go into this particular story because the right to life has been guaranteed under Article 21, most sacrosanct होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस की बात की थी। अब यहाँ पे 2 केसेस मेंशन्ड है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस एमएस चावला, नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब व्हाट इज राइट टू हेल्थ इज एन इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ, बस इतना याद कर लो, पैसेज में अपन को मिलेगा, ठीक है। आईलेट के लिए अगर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हेल्ड दैट राइट टू हेल्थ इज एन इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ, यू विल मार्क स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस एमएस चावला, ठीक है। राइट टू हेल्थ इज इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ, तुम्हें याद होगा अभी जब पेपर को लेकर बात हुई थी, सपोर्ट कौन कर रहा था पेपर नहीं होना चाहिए, पंजाब से आया था सपोर्ट, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। उन्होंने 2-3 बार बहुत सारी चीजें बोली, पंजाब, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की अगर बात की जाए तो नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अमंग अदर फैक्टर्स इट मस्ट बी जो वेदर द रिस्ट्रेंट कॉज बाय लॉ इज मोर देन नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इंटरेस्ट देखना पड़ेगा जनरल पब्लिक का व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। सो देयरफॉर इस केस में बात की गई थी नरेंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ठीक है। इसी के साथ अपन ने ये टॉपिक खत्म कर लिया है, एंड वी एक्चुअली टुक 12 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टॉपिक। Now let's go to topic 2. Again, I have already told in numerous number of times that the women-related laws or some passages which are related to women's right will always be important for law entrance examination, and that you have actually seen in either the mocks which you have been attempting or in the NLAT paper itself, ठीक है। आप कोई भी पेपर इस साल का जो भी देने जाएंगे, अटेम्प्ट करने जाएंगे, ये तो पूछा जाना लाजमी है,
ठीक है। अब वो किस चीज़ से हो सकता है वो हम लोगों ने बात की थी सबरीमाला टेम्पल की एक अलग सेशन उसमें हुआ था। हम लोगों ने बात की थी वुमेन एंट्री की विद द फोर्सेस, उसकी एक अलग सेशन हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं why Indian women don't feel safe in our own country, and this is a question. Crime against women के लिए lawmakers are the lawbreakers. We have seen that nearly in times to come, 3 MP, 48 MLAs of these four have rape cases against them. Now, this is a very very serious concern. This was the passage which became important to law for the clad aspen, the root of sexual brutality. ठीक है. This came in 20 August 2019, and the question of privilege was asked, the civic indifference was asked. We have seen times and again the leaders and how they are protected in this particular manner, and how the police reacts when this kind of cases happen. That being said, दैट बीइंग सेड, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अब यहाँ पे जो है इसे डिफाइन किया गया है, यूनाइटेड नेशंस डिफाइन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट्स इन और likely to result in physical, sexual, or mental harm or suffering of a woman, including threat to such act, coercion, or arbitrary deprivation of liberty. अब see, we will be very. This will be very easy for us to understand the term violence. It will be given in the passage. यूडीएचआर की बात की जाएगी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, वहाँ पे नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर ये मैंशन है, क्रुएलिटी को या इनह्यूमन या डिग्रेडिंग उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर सीडो की हम लोग बात करते हैं, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है। इसने यहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई किया है दैट फीमेल एज द प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर वायलेंस। ठीक है। एंड इनने इंक्लूड कर लिया है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइफ, एंड दिस इंक्रीज द डेफिनेशन। लीगल फ्रेमवर्क इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कुछ भी रिलेटेड सम इनजस्टिस इज डन टू वुमेन, और if cases are not registered and there's hue and cry, understand this. uh, I don't know how much they also take so much cognizance of the matter, but it needs to be increased for the matter. uh, Said it's a statutory body. Point number one, you must know it's a statutory body. Pakka pakka. Then in India there is Dowry Prohibition Act. Then there are other laws causing miscarriage के ऊपर IPC बात करता है. Without her consent उसके लिए एक अलग सेक्शन है. Uh, फिर डाउरी डेथ के लिए एक डाउरी डेथ के प्रोविजंस हैं, रेप के प्रोविजंस हैं. दीज आर मेंशन अंडर द इंडियन लॉ आईपीसी. ठीक है. आगे चलते हैं. कॉजेस, अब यहाँ पे क्या है, कॉजेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. अब दो चीजों की जरूरत है. वी मस्ट एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ ऑफेंडर्स. व्हाट इज दैट प्रॉम्प्ट्स द ऑफेंडर्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. वी मस्ट एग्जामिन व्हाट वाज द रीजन that they became an offender, and we need to correct those reasons. Consideration of whether some women have a heightened vulnerability to victimization. Now, these all things are given in a passage. I'm not making up by myself. In India, 2016 की बात की जाए, of course this is a 2019 passage, but again the data is given of 2016, and you see this is a very highly chances that this data has increased over the years. 2016 की बात करें, 3.38 lakh crimes against women, 11.5% रेप केसेस. ठीक है. सिर्फ एक में हुआ कन्वेंशन. ठीक है. सो दैट यू कैन सी दैट हाउ लेस इज द कन्वेंशन रेट इन इंडिया. Problem still exists at root level. Yes, the main problem lies at the root level. You would have seen, if you would have read the newspaper, Hindi newspapers of the local area, you have seen that a lot of times you read these kind of stories. Local political past comes into play. Economic, social, and sexual tensions between individuals comes into play. Caste and community equations, of course, it comes into play. Sometimes someone goes to the police station and they don't pay a heed to this particular kind of issues. Sometimes a family members say to keep shut and do not speak about it. The measures of impunity that a perpetrator of crime might claim and exercise all shape. Police responses की बात की जाए, this is improving over the years, but it's not actually good. A lot of times we have seen people go out in the front of the CM's office, and they try to light up themselves to ensure that they whatever they are saying is heard.
and then also the civilians are also responsible. The way the various people react, the people in positions react to crime against women, that needs to be corrected for that matter. Effects at grassroots level. See, a lot of times people demoralize people to go into the justice system. They say police pe aade mein mat padho, theek hai. The next segment is they are under pressure to remain quiet. That is another thing. If they are from Dalit community, then again, many a time it becomes difficult for them to register a case. Low status of women over the times, and again, yes, their right, they have got the rights, but that needs to be imposed in reality on the ground level. Poor families, the need to pay a marriage dowry. But sometimes parents feel it that it will be very difficult if it comes down to the news that then marriage will be an issue, then dowry will be an issue. Sometimes, say a lot of times we have seen sex selective abortion taking place, and we have read in the news female infanticide is in rise, and in such a situation you understand uh, it's a demoralize the family and the victim uh, to not go into the justice system. These are the effects at grassroots level. Assault, the women in lower strata, ठीक है, uh, इनके पास political by, if somebody has a political privilege, social authority. So a lot of times we have seen, I will not name the leaders against whom the charges have been made, and what went on later, whether some decision was taken by the police authorities. It's like, then the village elders, we have seen in a lot of in northern Indian states, village elders come to the forefront and they could go for compromises. Sometimes they ask the particular person to marry, the offender is married to the victim. Such things also happen. And then we have seen that there's a shortage of judges. There's uh, like the justice system is really slow. I mean, I'm not the first person who's saying that. The Chief Justice of India, for that matter, has said about dependency of cases, and this needs to be corrected. The birthplace superiority must be reduced. We have seen that changes made to the co-parcenary status of women. That is a good move again. So I said women-related news will always be important for law and risk examination. Takeaways: a better understanding of the causes of the violence against women, both preventive and intervention level पे, ठीक है. Potential remedies we must identify, ठीक है. Operation in all forms must be reduced, even from neighborhood, school, faith settings. Everything is important. Criminal justice system को ठीक करना पड़ेगा. मतलब they should work more towards the right of a woman, and then establishing norm of respect, safety, equality, and helping others. This particular passage is somehow took us through the different notions which are there in the society and what is going on. The law was here. The law was in this particular slide. CEDAW, UDHR, UN, then National Commission of Women, and miscarriage. You must understand the reasons behind this, why the cases are increasing, and once you understand, you will be able to answer the questions in the nature: which of the following is true, which of the following is not true, what does the author believe to be the causes of violence against women, uh, what is the effect at the grassroots level, which of the following makes the woman prone to assault, whether they are considered in lower strata. So these kind of question, and again, now, do you believe that a better criminal justice system would be able to uh, give justice to the victims of these sexual offenses? So again, now coming on to the third topic. The third topic is related to money laundering. Uh, Understand this. Why picking up these topics? The one reason being that I have already told you, can we make 5 questions out of a particular passage? If yes, if I or you can make 5 questions out of a particular passage, then that particular passage becomes important. Understand this very clearly. So Prevention of Money Laundering Act, ठीक है, गवर्नमेंट मेड लॉ स्ट्रिक्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट आया 20 बाय फाइनेंस एक्ट 2019. अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? सी, आई थिंक यू वुड हैव वॉच्ड some TV series you where you have seen the money laundering process being done. Uh, Easy भाषा में बताया जाए, laundering, you understand.
धुलाई करना किसी भी चीज़ की, उसको अच्छे फॉर्म पे लेके आना, जैसे लॉन्ड्री में कपड़े देते हैं वो गंदे कपड़े देते हैं, साफ होके चले जाते हैं, वैसे मनी के साथ किया जाता है। पैसे काले मनी को, मतलब अगर इजी भाषा में एक लाइन में बताऊं, काले मनी को सफ़ेद मनी, मतलब सफ़ेद मनी में कन्वर्ट करना, मतलब एक जो मनी एक गलत तरीके से आई है, मतलब इलीगली एक्वायर्ड जो मनी आई है, जो हम लोगों ने जो किसी ने भी कमाई है, उसे किस तरीके से उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू द वाइट मनी। सो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। अब इसके अंदर क्या क्या है, इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, जो कि आप लोगों को अब तक पता होगा, ठीक है। अ, उसने डिफाइन किया है कंसीलिंग, डिस्गाइजिंग, आइडेंटिफाई ऑफ इलीगली ऑब्टेन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। अब कैसे कैसे आती है ये ब्रेकिंग बैड में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में एंगल, दैट पर्टिकुलर लेडी किस तरीके से वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रही थी, ठीक है। सो फिर क्या होता है, कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, किस तरीके से आती है, ड्रग स्मगलिंग से, रॉबरी से, एक्सटॉर्शन से, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जो मेंशन्ड है आपके स्क्रीन पे। कोर ये है कि इतने सारे तरीके हैं, कोर ये है कि कैसे होता है, इसके स्टेप्स क्या हैं और अपने लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू द पैसेजेस कौन से हैं। ये एक पैसेज है जो आपकी स्क्रीन में है। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ टेंटेड मनी, ठीक है, एज एन अनटेंटेड वन, सिंपलीफाइड। It is process which disguises illegal profits arising, compromising the people who want to benefit. सिंपल सी भाषा में समझो, गलत तरीके से पैसा कमाया उसे सही तरीके से दिखाने का एक प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग की। मान लीजिए आपने आपकी एक दुकान थी और आपने, आई हैव सीन इट, लाइक यू वुड हैव आल्सो सीन, जब आप दुकान से कोई सामान लेने जाते हो, जो दुकानदार होते हैं उनके पास दो टाइप की रसीदें होती हैं, एक होती है कच्चा बिल, एक होता है पक्का बिल। इवन इंक्लूडिंग इन कोचिंग्स इन इंडिया, आई मस्ट टेल यू दैट, ठीक है। दे हैव टू काइंड ऑफ बिल्स, कच्चा बिल एंड पक्का बिल। द वन विच इज ऑन जीएसटी एंड द अदर वन इज कच्चा, मतलब एक ऐसे छपुआलो वाला, ठीक है। तो वो होता है, तो दिस कच्चा बिल गिव्स दैट पर्टिकुलर चांस, क्योंकि वहां पे टैक्स बच रहा है, एंड दैट इज वेयर उसका कोई लेखा जोखा नहीं है जो पैसा आया, ठीक है। सो दैट बेसिकली गिव्स राइट्स टू द ब्लैक मनी, ठीक है। आप किसी भी तरीके से उसको यूज करो, नो बडी, गवर्नमेंट हैज नो आइडिया कि वो पैसा आया भी कहाँ से, किस सिस्टम से किस जगह गया, ठीक है। सो ये छोटे लेवल पे भी आप लोगों ने देखा है, बड़े लेवल पे तो आप न्यूज़ पे देखते ही रहते हैं, हम लोग अभी देखेंगे। प्लेसमेंट, इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। मूविंग द फंड फ्रॉम डायरेक्ट एसोसिएशन विद द क्राइम, कि मान लीजिए कहीं से भी आया, मतलब ब्लैक मनी आई, मान लीजिए आपने कोई एक आर्म्स बेचे, ठीक है, आर्म्स बेच के जो पैसा आया, अभी ये डायरेक्टली इस यहाँ से एसोसिएटेड था, अब इसका डिस्गाइज करना है कि ये यहाँ से नहीं आया, कहीं और से आया, तो मैं, हो सकता है मैं किसी को दे दूँ और फिर बोलूँ तुम मुझे दे दो, ठीक है। और फिर जब वो मुझे दे दिए तो अब इंटीग्रेशन, अब वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे, तो अब यहाँ पे मेरे नाम पे आ गया, किसी और के नाम से किसी और बात के लिए, तो इंटीग्रेट हो गया, अब वो बिल्कुल दिखेगा कि आई हैव अर्नड इट फ्रॉम समवेयर एल्स। अच्छा, अनोश इक्का, फॉर्मर मिनिस्टर इन झारखंड, हैज बीन सेंटेंस्ड टू जेल फॉर 7 years, कनेक्ट किस चक्कर में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ठीक है। यू आर सीइंग कि जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं उनको भी जेल भेजा जा रहा है, ठीक है। सो ये बस एक हेडिंग है, पूरा पैसेज भी था न्यूज़ पे। अगेन अनदर न्यूज़ यू सी, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए। सो इसमें क्या था कि प्रॉपर्टीज वर्थ ₹175 करोड़ ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी विद मनी लॉन्ड्रिंग, आलिश बैंक फ्रॉड में जो रिलेटेड थी, उनको, उनके ऊपर बात की गई है इस पर्टिकुलर पैसेज में, ठीक है। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पोस्ट में आया इसमें भी, ठीक है। अगेन पीएमएलए के अंदर देखा गया, तृणमूल कांग्रेस इन साउथ कोलकाता, टू फ्रैक्शंस आपस में भिड़ गए थे, ठीक है। चक्कर अगेन फिर गोज डाउन टू दी पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। certain changes were made, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम, कहाँ से अब यहाँ पे चेंज फ्रॉम, मतलब मेंशन्ड इस कानून के अंदर, बट ऑल्सो प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट विद डिजायर ऑब्टेनेबल एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी कुछ भी प्रोसीड्स, तो उसे भी माना जाएगा, उसे भी इंक्लूड किया जाएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ 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 मनी लॉन्ड्रिंग किसे माना जाएगा कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या नोइंगली असिस्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अ पार्टी और फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन, कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं किसी का पैसा, पजेस कर रहे हैं, किसी ने ब्लैक मनी कमाई आपको दे दी रखने के लिए, आपने बताया नहीं,
अक्वायर कर रहे हैं, मतलब ब्लैक मनी से किसी ने कुछ चीज़ बनाई और आपने उसको बोला कि हम ले लेंगे, ठीक है, और यूजिंग प्रॉपर्टी कनेक्टेड विद, मान लो किसी से ब्लैक मनी किसी ने जनरेट की, उससे किराए का मकान बनाया और आपको दहेज में दे दिया, ठीक है, विच इज प्राइमरली रॉन्ग, द डाउरी इज इटसेल्फ रॉन्ग, बट मान लीजिए एज अ गिफ्ट दे दिया, ठीक है, इन दैट अगेन मैनर, ठीक है, सो this is also, this will be also considered as under the prevention of money laundering. So that being said, another, these articles were floating at that point of time when this particular change was made. And here you see our finance minister, she is always in news. And yes, again फाइनेंस एक्ट 2019 की बात हो गई, क्राइम एंड पनिशमेंट इसके बारे में बात की गई एक अलग पैसेज में, विच इज ऑन योर स्क्रीन. टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम कैसे लगती है, देखो, आई विल नॉट टेक टाइम टू make you understand this topic, so to make you understand everything related to this, otherwise you will start telling some of your friends or even your relatives कि why not do this, which is primarily wrong under the law. कलेक्शन करना डर्टी मनी का, देख रहे हो, फिर उसे प्लेस करना, डर्टी मनी इंटर्स द फाइनेंशियल सिस्टम, उसके बाद ट्रांसफर होते हैं फंड्स बिटवीन डिफरेंट बैंक्स, ठीक है, क्लियरिंग, इंटीग्रेशन, परचेज. अब वो जो पैसा आया उसको बैंक से निकाल के कुछ खरीद लिया, अब ना किसी को कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आया, क्या हुआ, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है. तो ये प्रोसेस है. इम्पैक्ट क्या होता है, देखो, अब मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट ये है कि डैमेज टू रेपुटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन मार्केट, वीकेंड करता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है. ब्लैक मनी, कुछ ऐसी मनी जनरेट हो रही है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, या पता ही नहीं चलता कहाँ गए वो मनी, कहाँ से आई, दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, इस समय मान लो कि इस समय जैसे मान लो कि somebody has a lot of businesses are failing due to the COVID situation. Somebody has this kind of money, अब वो क्या करेगा, अब सस्ते दर पे हर बिजनेस पे कुछ ना कुछ स्टेक ले लेगा. Now that he is using that kind of money to have that impact on the market, क्रिमिनल एक्टिविटीज. अब ये लोग ही पैसा, ये जो पैसा होता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका अपॉर्चुनिटी देता है क्रिमिनल को. प्राइवेटाइजेशन, प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जब ऐसा पैसा होगा तो कोई कहीं पे भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएगा, ठीक है. यू वुड हैव हर्ड रियल एस्टेट में किस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली होती है कि आपको ऑन पेपर्स आपको फ्लैट मिलेगा 50 लाख का, बट वो आपसे बोलेंगे कि गिव मी 80 लाख में हम बेचेंगे. 50 लाख, रीजन बीइंग की रजिस्ट्री और अदर लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल रियलाइज इट लेटर, अपने पेपर के लिए भी रेलेवेंट नहीं है, बट इम्पैक्ट इसका यही है, ठीक है. अमेंडमेंट डिफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसके बारे में आपने अभी समझा, ठीक है. सो मैंने तो बस एक एग्जांपल दिया था, ठीक है. अब यू नो अ लॉट ऑफ वेज बाय विच मनी कैन बी लॉन्डर्ड. ब्लैक मनी को वाइट करने का मैकेनिज्म मनी लॉन्ड्रिंग होता है. आपको ये बताना है कि भैया वेदर अ मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन डन इन दिस पर्टिकुलर केस और नॉट. यहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या था, मतलब किस तरीके से मनी जनरेट हुई, ठीक है. ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है. अब आगे चलते हैं, ठीक है. एंड अगेन, इफ यू फील दैट इट्स लाइक हम लोगों ने अभी बहुत जल्दी टॉपिक्स का खत्म किया, तो जस्ट चिल. We will come down to the topic of constitutional law very like in a short span of time. Topic 4, Consumer Protection Act. Yes, so we had a very separate session on this Consumer Protection Act. I hope you remember it. That was taken by Bhavtosh. So the new act. I've told you time and again that we must understand the new act. We must understand why this act was needed. ठीक है. देखो एक होता है मैन्युफैक्चर और एक होता है कंज्यूमर. कंज्यूमर इज लाइक वी पीपल, हम लोग जैसे लोग, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे जीवा इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर दैट मैटर, Move Acoustic, the ads are done by the Indian skipper, and this particular company has no segment, no consumer support. They have no, their social media accounts are all like, I don't know, managed by whom. In that particular manner, you don't have any kind of avenues like the consumers, you, me, or anyone else. The last result, what happens is we don't have any avenues to get a product खराब है, 1 साल की वारंटी, but they are not even talking to you. How will you get that particular warranty? So again, laws help you, ठीक है, to understand. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है अभी भी, ठीक है. फास्ट चेंजिंग बिजनेस हो रहे हैं और जिससे बहुत सारी प्रैक्टिसेस आप देख रहे हैं कि मतलब बदलती जा रही हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो ये पैसेज है कंज्यूमर कोर्ट्स के ऊपर, ये पैसेज था,
एंड अब आगे चलते हैं, एक अलग पैसेज की हाइलाइट्स के ऊपर ये बात करता है कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन भी अब इस कानून के अंतर्गत आ गए हैं। ठीक है, जो पैसे की लिमिट थी, पेक्यूनरी लिमिट, ठीक है, वो बढ़ चुकी है। ई फाइल आप कर सकते हैं कंप्लेन को। नाउ दिस इज अ ग्रेट achievement for our country, that we have come down to this stage where we can file e-complaints. Establishment of Central Consumer Protection Authority. So, under which of the following laws Central Consumer Protection Authority was established in India? AILET के लिए आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, देन अगेन पैसेज ऑन योर स्क्रीन, सेम, लगभग सेम बातें की जाएंगी। ठीक है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात की जाएगी। ठीक है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाएगी। ठीक है, the 2019 acts provide that a manufacturer, producer or a seller will be liable for personal injury, death or damage resulting from a product or service defect where there was no similar provision in the old law। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा कानून, मतलब आप एक टीवी लेके आते हैं घर पे और एकदम से क्या होता है, टीवी ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, सो हु ऑल कैन बी रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, आई जस्ट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये एक सवाल देखो बन गया तुरंत। ठीक है, Ram has been suffering from a particular brought up product. Nobody is hearing you. Under which of the following law will you suggest him to move, approach the court, and which court he should approach? Consumer court, this and this particular law. This is the answer. Yes, I get to सवाल। Consumer rights, a right to basic needs, safety, make a choice, redress, healthy environment, service, consumer education. You have heard Jago Grahak, Jago. ठीक है? In the sense, Jago with respect to understand your rights is not like कि somebody is saying कि सुबह उठ के जागो ग्राहक जागो and you have set it a tone, alarm tone कि नहीं, I will wake up only like this only। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, यू मस्ट बी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फेयर एंड हैंडसम। ठीक है, और there's this asterisk mark that read the conditions, like I don't know what they have written, but nobody gets fair and handsome from using fair and handsome, as I have heard from people। Again, that being said, features of the act, कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है, हु बाइस एनी गुड्स और अवेल्स सर्विस। या तो आप सामान खरीदो, मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में गया, मान लो आई एम गोइंग टू एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप और वहाँ से मैंने सामान खरीदा, सो आई बाय द प्रोडक्ट। बट अगर मैं गया, मान लो सर्विसेज, एजुकेशन इज अ सर्विस फॉर दैट मैटर, आई मस्ट टेल यू। ठीक है, एंड या आपको सर्विसेज, मान लो आप बार्बर के पास गए, या इलेक्ट्रिशियंस की आपने सर्विसेज ली, या किसी कंपनी की सर्विसेज ली, सर्विसेज के मतलब नाम ही आ रहा है, देख रहे हैं आप, सर्विसेज। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब फ्री में नहीं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वो गिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये नहीं कि मोहल्ले में एक बगल में दुकान थी, उन अंकल से बोला आपने कि मेरा आके मतलब अब स्क्रू, मतलब जो है इसका बोर्ड का स्क्रू ढीला है इलेक्ट्रॉनिक का, वो आए, उनने ऐसा किया और उसको करने के बाद और खराब कर दिया। अब पैसे तो आपने उनको दिए नहीं, लेकिन आप केस जरूर करने चले गए, तो ये आप नहीं, ये एक ध्यान रखिएगा, फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स अ गुड फॉर रीसेल। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ऑल मोड्स इंक्लूडिंग ऑफलाइन, ठीक है, एंड ऑनलाइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या जो भी है, आई डोंट नो अदर्स। ठीक है, टेली शॉपिंग जो आपके देखती है कि खरीदें 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 वाला जोन पे, वहाँ तक भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स को डिफाइन करता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ अ गुड, प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ। मान लीजिए आप एक ऐसी एसी लेके आते हैं जिससे बाद में आपको पता चलता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है कमरे का, वो कम हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हद तक, जिससे आपको आपकी ज़िंदगी खतरे में आ रही है। दैट बीइंग सेड, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी, एक जो हम उनको नहीं मिलता, एक पैम्पलेट टाइप का मिलता है हर सामान के साथ कि क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, इसकी प्योरिटी क्या है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। वैरायटी ऑफ गुड्स हम लोग को पता होनी चाहिए एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ठीक है, दिस मस्ट बी डन। ठीक है, तो आजकल तो हम लोग देखते ही हैं कि कुछ भी आता है उसका प्राइस फिर से डाउन हो जाता है। यू सी अमेजोन विल से कितना हुआ, अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल आएगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि तैयार रहो, मतलब आएगा तो देन दे विल प्लेस इट अनदर 10% ऑफ, एंड देन इफ यू यूज HDFC देन अनदर 10% ऑफ। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोडक्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, competitive price। ठीक है, it also include right to be heard। ठीक है, therefore consumer forum, consumer awareness, etc etc।
Then I have already told you this is very very important. Central Consumer Protection Authority was set up under this particular law. इसे याद कर लो, ठीक है, पक्का पक्का. कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल फोरम टू बी सेटअप, ठीक है, तीनों डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल, कितने लेवल पे, 3 लेवल पे, ठीक है. एडजुडिकेटिंग बॉडी होगी, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स भी बनाए जाएंगे, अगेन 3 लेवल्स. प्रोडक्ट लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, हम लोग अभी बात कर चुके हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी की. अब देखो इसमें एक और चीज़ है आखिरी में, मेंटल एग्नी और इमोशनल हार्म अकम्पनिंग दीज कंडीशन, ठीक है. डिफिशियंट सर्विसेज दे रहा है कोई या डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे रहा है और उसके बाद जिसकी वजह से आपका you are in mental agony, then also this act looks into that angle too. See, on your screen right now is a difference between the 1986 Act and 2019 Act, and this is available. I have already posted this picture on your Telegram group of Project Maverick. ठीक है, you can find it there. Save it, go through it. ठीक है. अब मान लो मैं अकेले ये सेम पढ़ता हूँ जो सामने ये सिर्फ पिक्चर पढ़ता हूँ. कैन आई मेक 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस? यस, आई कैन मेक इट. ध्यान रखना कि पैसेज में 1986 लिखा है या 2019 लिखा है, या वो जो क्वेश्चन है वहां पे लिखा है अप्लाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड डिटरमाइन. सो ये जो ईयर है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे ये टॉपिक अपने पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बाय डिफॉल्ट. अब बात समझ में आई होगी कि क्यों अपन लोग इसे आज पढ़ रहे हैं. ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं. यू कैन इजिली मेक दोज 5 क्वेश्चन, ठीक है. यू सी देयर वाज टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और आर्टिकल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट की अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी अगेन पंजाब में, ठीक है, कि ये इस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी अमंग पीपल. नाउ we are in the 41 we have completed 4 topics within 40 minutes. Now coming on to the 5th topic, okay, and we will be covering it within the next 9 10 11 minutes or so minutes, okay. So rights, duties and constitution, very very important. Understand this. I've already told you constitution of India important है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए. पैटर्न चेंज हो ना हो, अगर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो कंट्री में अक्रॉस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट. ये जो हेडिंग है आपके सामने लिखी हुई, यू अंडरस्टैंड, 3 टर्म्स, राइट्स, ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन. पूरा का पूरा जब आप कभी भी टॉपिक पढ़ोगे या कोई भी पढ़ाएगा अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, इफ यू हैव अ गुड मेंटर, सो दे विल एम्फसाइज कि इसी से सवाल आएंगे बच्चे, राइट से ही सवाल आएंगे. फंडामेंटल राइट्स इज टॉट फॉर लाइक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, कभी कभी तो 1 हफ्ते चलेगा, ठीक है. बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वो इंपॉर्टेंट प्रोविजन कौन से हैं, किस टाइप का सवाल आएगा, सवाल के नेचर बदलते नहीं है, तो इतना टाइम अपन को नहीं देना है, ठीक है. राइट्स, ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये कब आया था, द हिंदू ने पब्लिश किया था इसे 26 जनवरी को, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, ठीक है. राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच के जो रिलेशन है एज वेल एज स्टेट, इनके बारे में मेंशन करता है ये पर्टिकुलर पैसेज. इस प्रकार है, इट इज ओनली आफ्टर गारंटी ऑफ सम ऑफ ऑल प्रॉमिस कैन बी आस्क्ड टू देयर ड्यूटीज. इमरजेंसी की बात की गई है, कुछ चेंजेस किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से, उसकी बात की गई है. फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, इंदिरा गांधी वी कैन सी ट्वाइस. देन अभी रिसेंटली इसके ऊपर बात की गई एंड इट सेड जस्ट ऐसे बोबड़े ड्रू अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर इन द इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020, ठीक है. वहाँ पे इन्होंने इसके ऊपर फिर से एम्फसाइज किया द रिलेशनशिप बिटवीन these two angles, to conjure up the image of the ungrateful and selfish citizens, happy to pluck the fruits of civilization, but unwilling to do their bit to water the tree. Nonetheless, despite this plausibility, this conflation of right and duties ought to be resisted. ठीक है. सो जहाँ मतलब कहने का मतलब क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज शुड बी मेंटेन. जहाँ अगर राइट्स मिली है तो ये शुड ऑल्सो लुक इनटू द ड्यूटी फ्रेमवर्क. बट क्योंकि हमारे यहाँ वो इम्पोसिबल बाय लॉ नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो लॉट ऑफ टाइम वी हैव सीन दैट most of the people don't follow it. ठीक है. This you can actually see, you go to any monument and you see a lot of people writing anything on the monuments. Should not be done. Or selling something on a national symbol. So web of duties, duties के बारे में ये पूरा पैसेज फिर बाद में बात करता है. We have a legal duty to pay our taxes, to refrain from committing violence against our fellow citizen,
एंड टू फॉलो द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इस टाइप की बातें करता है पैसेज पूरा। फिर द लॉजिक ऑफ राइट, राइट्स का क्या लॉजिक था, क्यों लाया गया, दिस इज वेरी गुड पैसेज इफ यू वांट टू हैव अ रीड। एंड लॉजिक क्या था राइट्स का, राइट ऑन द अदर हैंड फॉलो डिफरेंट लॉजिक इंटायरली। लॉजिक बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू हिस्ट्री, हिस्ट्री पे पढ़े जाता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मेंशन करता है। रोल क्या है फंडामेंटल राइट का, ये डिह्यूमनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए है, अनटचेबिलिटी को रोकता है, इक्वलाइजिंग पावर, इक्वलिटी लेके आता है। इस टाइप के ट्विन प्रिंसिपल ऑफ एंटी ह्यूमनाइजेशन, एंटी हायरार्की रिवील करता है। सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर, ये जो लॉजिक ऑफ राइट का जो पार्ट है, it shows us why we needed these rights. Let's learn now. Indian Constitution provides its citizen with the fundamental rights and fundamental duties. We know that fundamental rights, part 3 of the, अब तक तो याद हो गया होगा तुम लोगों को, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, 6 हैं, पहले 7 थे, फिर राइट टू प्रॉपर्टी हटा, तो वो किस में था, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था। ठीक है, अभी हम लोगों ने कल ही बात की थी, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, रिमेंबर। सो देन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए तो ये पार्ट 4A में है। अच्छा, तुम सोचोगे पार्ट 4 में क्या हो गया, तो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि बीच में खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, सो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द फंडामेंटल ड्यूटीज। गांधी इक्वलेटेड फ्रीडम विद सेल्फ रूल। ठीक है, ही अंडरस्टूड द एलिमेंट। ठीक है, ही वॉलंटरीनेस हम लोगों ने बिलीव किया कि वॉलंटरी अगर कुछ चीज़ें कर दी जाएंगी तो शायद लोग फॉलो ज़्यादा करेंगे। It completely depends. As the society is, as the people are getting educated, the society is growing. A lot of people have started following these duties, but still, maximum do not follow. The notion of self-rule implies the voluntary internalization of an obligation to others. हम लोग को मानना चाहिए ये हमारी obligations है, हम लोग को नहीं करना चाहिए. If we are eating something and if we have a waste, we should keep it on the bag. Now this is moral science. I will not go into that angle, but it's also our duty. इससे किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है. ठीक है. So we must consider these things. 42nd अमेंडमेंट की बात करें 1976 की, तो हाइट ऑफ इमरजेंसी, इंदिरा गांधी केम अप विद दिस थ्रू 40 इनएक्टेड स्वीपिंग चेंजेस। सबको अब तक थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये तो बिल्कुल मतलब अगर कॉपी भी नहीं है हाथ में तो कॉपी भी नहीं है तो हाथ में लिख लो, लाइक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, मतलब आना ही आना वाला साइड टाइप का सवाल होता है। क्लैट में साल आएगा, दिस डजंट लुक्स टू मी दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इट माइट कम। सो क्यों किया गया, सुप्रीमेसी बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट को देने के लिए बहुत सारे पास। ठीक है, आर्टिकल प्रीएम्बल में चेंज किए गए, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इट इज मेंशन, इट इज अवेलेबल ऑन योर LMS अंडर द लीगल एप्टीट्यूड फॉर क्लैट प्लस फोल्डर के अंतर्गत ये है मेंशन, गो थ्रू दैट। आर्टिकल 51A 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। ठीक है, ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ये बेस की गई थी। तो कौन सी किसकी रिकमेंडेशन, स्वर्ण सिंह कमेटी, एस स्क्वायर। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, DPSP एडेड, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स, ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगेन वी मस्ट नो दैट इस अमेंडमेंट से आई थी आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 48A तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39A इज अगेन इंपॉर्टेंट, फ्री लीगल एड टू पुअर, लिख लो, फ्री लीगल एड टू पुअर, 39A, सेफ गार्डिंग एनवायरमेंट, 48A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेब ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, तो वाइड रेंज ऑफ ड्यूटीज हैं बोथ थ्रू द स्टेट एंड इंडिविजुअल। कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो हमें स्टेट के प्रति फॉलो, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो हमें उनके प्रति फॉलो करनी है, कुछ इंडिविजुअल्स के लिए। जैसे स्टेट के प्रति अगर बात की जाए तो वी हैव टू पे टैक्सेस एंड लोगों के प्रति एक एग्जांपल दे देते हैं, वी शुड नॉट हर्ट देम, आवर फेलो सिटीजंस। ब्रीच अगर देखा जाए तो इन लीगल ड्यूटीज का कभी कभी ट्रिगर कर देता है फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, फाइन आ जाते हैं। दिस कम्स डाउन ओनली विद टैक्सेस वाला सेगमेंट। हम लोग बहुत सारी ड्यूटीज ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, they follow a simple logic. Peaceful coexistence require a degree of self-sacrifice. हम लोगों को चीज़ें खुद से करनी चाहिए अगर हम लोगों को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी है, एंड दैट इज व्हाई द लॉ वाज क्रिएटेड। अंडरस्टैंड दिस। लॉक, हॉब्स, रोज़ो जब आप पढ़ोगे कॉलेज में जाके, इफ यू हैव अ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट एंड रीड दिस पॉलिटिकल थिंकर्स, यू विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पीपल इन अ कम्युनिटी। ठीक है, सो देन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए चाहिए होता है।
Constitution will lose importance if fundamental rights not protected, say Supreme Court. Of course, we understand that fundamental rights should be protected. Therefore, वो इसीलिए वो लाए भी गए हैं, ठीक है. पार्ट 3 में मेंशन है, ठीक है. आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आर्टिकल 12 में डिफाइन करते हैं ये लोग स्टेट क्या होता है, ठीक है. आई हैव ऑलरेडी while in a particular session I have already told you in the last 10 minutes about this segment of what is state is. क्वेश्चन क्या था ये भी बता चुका हूँ. फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये तो अपन को याद करना ही पड़ेगा. फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट. आई टोल्ड यू आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21, 29 and 30 for this year's CLAT especially covered, and they have already covered that. नो रिड्रेसल फॉर वायलेशन फंडामेंट. अब देखो अपने क्या है कि आर्टिकल 32 है, 226 है, ये रेमेडीज हैं, ठीक है. और एक और बात है फंडामेंटल, ये जो आर्टिकल 32 है और 226 है, इन्हें हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था. किसने बोला था? इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पूना पैक्ट भी साइन किया था, ठीक है. he was also the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड. महात्मा गांधी ने अपने बुक हिंद स्वराज में बात बोली थी. सिटीजन्स हैव बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज. अ मेल्टिंग पॉट ऑफ myriad कल्चर्स एंड ट्रेडिशन, CGI सेड दैट, ठीक है. हेरोल्ड लास्की एक फेमस थिंकर है, उनने भी बोला मैंस राइट इज ऑल्सो हिज ड्यूटी, ठीक है. राइट टू लाइफ जैसे देता है तो हम लोग को देखना चाहिए कि हम इंडेंजर ना करें किसी और को, ठीक है. Now in 50th minute we have completed these 55 topic rather questions. Again, what are the reason behind 42nd amendment? पैसेज में था गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी बढ़ाना. Bind us every day. These duties are owed to whom? State and individual. I have already told you. क्या होगा अगर हम लीगल ड्यूटी नहीं फॉलो करेंगे? फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट होगा. रीजन फॉर इंसर्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, जिससे हम एंटी डिह्यूमनाइजेशन और एंटी हायरार्की को प्रोटेक्ट कर सकें. अमेंडमेंट की बात की गई है, 42nd अमेंडमेंट, pointers, women right, etc., etc. ठीक है. So in 51 minutes, I started at 4:01. We have completed 5 topics, uh, important topics for this year's CLAT. So the promise is upheld. 5 topics in 50 minutes. That's all from my end, and possibly in the next week I will try to do another session wherein will take up 5 most important cases in 15 minutes, something like that, or legal current affairs from June 2019 to June 2020 in 1 hour. We will do so. That being said, NLAT के बारे में जिन लोगों को सवाल थे, a lot of kids question. New date, the decision will be made on Monday. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. एनालिस्ट ने बोला था कि अगर तब तक नहीं कर पाए, अगर 18 से नई सेशन चालू किया, 0 ईयर हो जाएगा. Still it's a question mark and I have already questioned it. अब तक तो फिर दिन उनको 0 ईयर डिक्लेयर ही कर देना चाहिए, बिकॉज दे सेड फिर हम नहीं 0 ईयर हो जाएगा अगर डिले हुआ, तो डिले हो ही रहा है, ठीक है. बट again administrative decision from VC of that particular college, completely his discretion to do that, ठीक है. That being said, you have an all India open mock. Remember this, you have an all India open mock this Sunday 20th, and a lot of people from different parts of the country will be appearing in that. Try to solve that particular paper very seriously, ठीक है. Try to incorporate everything which is important for this year's CLAT, ठीक है. एक ऐसा पेपर बनाया है, एक ऐसे पैटर्न पे जाके बनाया जो सैम्पल पेपर का पैटर्न था, अपने आप डिवाइस नहीं कर दिया, एक मॉक बनाने के नाम पे कुछ भी बन गया, ठीक है. पास के पेपर्स के क्वेश्चन उठा के लगा दिया, ठीक है. जो पैटर्न था सैम्पल पेपर्स का, उसी पैटर्न पे बिल्कुल बना हुआ है, ठीक है. बहुत ही रियलिस्टिक है, ठीक है. आराम से नंबर आए जा सकते हैं. इफ यू क्रैक 95, वेल एंड गुड. इफ यू डोंट, देन इट्स then next 7 days you have to work 2 hours more. That being said, that's all from my end. All the best, champs. See you tomorrow. Okay, I have a question. Thank you. Oh, it's okay. It's okay.